Hey my lovely people, welcome back to my YouTube channel. My name is Shahzadi and you guys are watching me on my YouTube channel. So in today's video, I'm going to share my interview experience with all of you. So again, I went for the interview with Indigo Airlines. This was my fifth interview with Indigo Airlines. Like already post 3 videos with Indigo and I forgot to post 1 video, and now this is the 5th interview experience video. So I hope this will helpful for you. So before start my video, I would like to request to my YouTube family, go and subscribe my channel. Also hit the bell icon and don't forget to share with your friends my video. And let's get started. So as I told guys, this was my 5th interview. So this was on 14 September, which means yesterday. So I'm making this video for all my lovely people who message me, who wants that I should make a video, so that will help to those people who want to go for the interview, who want to know that which kind of questions and which kind of rounds were there. So that's why I'm making this video. I hope this will helpful for you. So yesterday was my interview. So I went to the Lucknow interview venue, and interview location was same, Lucknow, Ramada. So I went there. It was raining yesterday in the morning when I went for the interview. Even whole day was raining. So I went for the interview. I reached there, then I changed my cloth as always. Then इस बार ना बहुत सारे बहुत कम लोग थे, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा था, बिकॉज इस बार शायद रेन की वजह से बहुत सारी ज़्यादा क्राउड नहीं था वहाँ पर, कम ही लड़कियाँ थी, अराउंड 100-200 के आसपास शायद से. So I was standing in the line and I was waiting for my turn. फिर sir came and he called us in the hall and said you guys sit there. So Rishabh sir was there as always, but I don't want to give my interview to him because as I rejected. So that's the reason maybe that I don't want कि again maybe he can reject me. So that's the reason. So when सर ने बोला कि आके बैठ जाओ, तो कुछ हम ज़्यादा लड़कियां थे, 13-14, तो मैं एकदम स्लो चल के जा रही थी कि सब सीट्स फुल हो जाए, फिर मेरे को नहीं मिलेगा. फिर मैं अगले जो और वहाँ पे बहुत बड़ा सा हॉल था और वहाँ पे 3 से 4 HR थे. सो वो मुझे लगा कि इनमें से किसी को मैं इंटरव्यू दे दूंगी ना उनके अलावा. तो मैं वहाँ से मैं इतनी लेट पहुंची थी, 10:30 बजे के अराउंड में वहाँ पे पहुंची थी कि वहाँ पर 4th राउंड भी स्टार्ट हो गया था. मतलब जो 4th राउंड चल रहा था वो भी लैपटॉप सेशन जो होता है वो भी चल रहा था उस टाइम पे, जब मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गई थी, मतलब फर्स्ट राउंड के लिए गई थी. सो मैं वापस आ गई और मैंने सोचा कि अभी दूसरा जो HR खाली होगा कोई और, मतलब ऋषभ सर के अलावा, फिर मैं फटाक से चली जाऊंगी. अब तो ऋषभ सर वैसे भी बिजी हो जाएंगे क्योंकि अब उनका वो ये प्रेशर चलेगा ही वाला, तो अब मैं दूसरे में चली जाऊंगी. फिर थोड़ी देर मैंने वेट किया बाहर, मेरे पीछे और लाइन लग गई. फिर again sir came and again he called us. So again we went to inside the hall, and then again what I saw that again Rishabh sir got free and again he called me, then come and sit. I was like, oh shit, now what can I do? So it was compulsion, so I went there and I just sat down. So one girl collect all the CVs, not in the sequence, she collected ऐसे ही simply किसी से भी लेके. So वो CV उनके पास चली गई, तो वो ऐसे एक ऐसे कहीं से भी जिसका भी नाम वो ले रहे थे, तो वो लड़की इंट्रो दे रही थी. इस बार थोड़ा पैटर्न अलग था ऋषभ सर का. ऋषभ सर आस्क्ड अबाउट दैट लेट्स हियर अबाउट यू, विच मीन्स अबाउट योर सेल्फ. तो हर एक इंडिविजुअल लड़की ने अपने अपने बारे में बताया. उसका जब वो अपने बारे में बता रही थी, तो फिर वो उस बताने से, यानी कि उसका जो एक्सपीरियंस था या फिर वो जो कर रही थी, तो ही आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम दैट एक्सप्लेनेशन. और वो CV से पूछ रहे थे, किसी के CV में कुछ मेंशन था दैट दे आर वर्किंग समवेयर और दे हैव एक्सपीरियंस इन एनी काइंड ऑफ फील्ड. सो दे आस्क्ड दैट क्वेश्चन. सो वैसे करके व्हेन ही आस्क्ड मी अबाउट माई सेल्फ, सो आई एक्सप्लेन्ड हिम वेरी नाइसली. एंड मैं बहुत शॉर्ट बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत सारी फालतू झूठी चीज़ें नहीं बताती हूँ. मेरे पास जितना सिंपल मैटर होता है मैं उतना सिंपल से बताने की कोशिश करती हूँ. और मैंने कुछ भी अपना इंट्रो चेंज नहीं किया था, मेरा सेम टू सेम इंट्रो था. मैंने वही जो मैंने पहली बार बोला था, दूसरी बार बोला था, वही मैंने इस बार भी बोला था. सो मैंने उनको बोला. फिर ही आस्क्ड मी, क्योंकि मेरी CV मेंशन है दैट आई एम वर्किंग इन एन NGO. सो ही आस्क्ड मी दैट विच काइंड ऑफ वर्क योर NGO इज डूइंग. सो आई एक्सप्लेन्ड हिम एवरीथिंग अबाउट दी NGO एंड देन ही सेड इट्स ओके, थैंक यू. फिर उन्होंने बाकी लोगों से पूछना शुरू किया एंड आई वाज लाइक कि मे बी आई गॉट रिजेक्टेड, आई डोंट नो. क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि वो सारी CV ना एक साथ ही रख रहे थे, मतलब उसमें कुछ लिख नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं. सो आई गॉट नर्वस एंड आई डोंट नो what is going to happen. So I was waiting for the result. We were sitting there
जैसे उन्होंने खत्म किया सबका पूरे 10 बच्चों का इंटरव्यू, सो ही टुक सम नेम्स लाइक ऐसे वन बाय तो मैं देख रही थी, वो पीछे से दिखता है ना कि अब मेरा सीवी आ रहा है, तो नाम के जब नाम ले रहे हैं तो पता नहीं है ना कि रिजेक्टेड है या सिलेक्टेड है। नाम ले रहे हैं तो लाइक नाम लिए, फिर बोला कि यू गाइज लाइक वेट हियर, द रेस्ट ऑफ गर्ल्स हुम नेम आई डिड नॉट टेक इट गो एंड लाइक कम टू द नेक्स्ट इंटरव्यू लाइक दिस। सो बाकी के बच्चे चले गए और हम कुछ 5 जन ले लिए गए इंटरव्यू। आई वॉज लाइक हो माई गॉड, मतलब कि जिस बंदे से मैं डर रही हूँ उसके पास मैं जाना नहीं चाहती हूँ और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। आई वॉज सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल टू हिम। एंड देन लाइक ही सेड दैट वी शुड गो दैट साइड, वहाँ पे मेडिकल चल रहा था, हम मेडिकल्स के लिए गए। सो आई वॉज स्टैंडिंग इन दैट लाइन, आई वॉज सो हैप्पी, बट आई डिडंट कॉल एनीबडी दैट क्लियर फॉर माई फर्स्ट राउंड बिकॉज आई डोंट वांट, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बार मैं चीज़ें क्लियर करती हूँ फिर मैं लास्ट मेरा रुक जाता है, तो मैंने किसी को बताया नहीं वो सब। सो आई वॉज लाइक standing there waiting for the medicals, so sudden what happened again, that sir came and like उन्होंने बोला कि अभी आप लोग, जैसे कि वहाँ पे ना 4 राउंड्स हो रहे थे, तो एक और HR बैठी हुई थी, तो सर ने बोला कि अब आप लोग ना ये वाला अपना राउंड यहाँ दे दो आके, मतलब हमारा सेकेंड राउंड मेडिकल की जगह पर दूसरा हो गया, दूसरे HR ने ले लिया। सो अब मुझे लगा कि अरे यार ये राउंड में अब क्या होगा, अब तो शायद नहीं होगा या कुछ भी, मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव फीलिंग आती है। So I sat down, so she started asking from one by one, then when she took my CV she said Shahzad, ऐसे, she was confused, so I said it's Shehzadi, so she was I'm really sorry Shehzadi कि मैं तुम्हारा नाम गलत लिया। मैंने कहा it's okay ma'am, no issues। Then she said about yourself, no, not about yourself, she said why do you want to become cabin crew? So I explained her everything, like why I want to become cabin crew. So in the end of the sentence I said that I'm very punctual, that's the reason I want to become cabin crew. So she said ki on which time you reported here? So I said on 10. So she said okay 10। मैंने कहा yes ma'am because mention था उसमें इंटरनेट पे इंडिगो के पेज पे slot time was 10। she said okay। और फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों की कुछ लिख रही थी सीवी पे और वो एक साइड रख रही थी, और हमारी सीवी पे कुछ नहीं लिखा और उसको एक साइड रख दिया। फिर उन्होंने जो उस पर लिखा था उनके नाम लिए, तो हम मतलब मैं वापस से दुखी हो गई कि नहीं लिया मुझे लग रहा था कि वो मुझे नहीं लेंगी या जो भी। फिर उन्होंने वो जितने भी नाम लिए फिर उन्होंने बोला कि यू गाइस लीव फॉर द डे एंड द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स हुम नेम आई डिडंट टेक इट दे कैन वेट। एंड फिर उन्होंने उन लोग को भेजने का हमारे नाम लिए और उन्होंने बोला कि गो फॉर द मेडिकल्स। सो मैं एकदम, मतलब मैं और जो 2 लड़कियां और थे, हम 3 जन चूज हुए थे, हम तीनों जन ऐसे लाइक कि यार हमें लग रहा था कि हम नहीं लिए गए और हम ले लिए गए हैं। और जनरली उन लड़कियों ने भी अच्छा ही बोला था जो मतलब और भी थी, बट अपना अपना नजरिया होता है चूज करने का, सेलेक्ट करने का। सो दैट्स द रीजन। फिर आई वेंट फॉर द मेडिकल्स। सो जब मैं मेडिकल में गई सबसे अच्छी चीज मेरे साथ क्या हुई कि जो मेडिकल डॉक्टर ले रही थी शी रिकॉग्नाइज्ड मी। सो मैं उनके पास गई, पहले तो मैंने उनसे फॉर्म लिया, मैंने फिल करा। फिर उस टाइम ज़्यादा भीड़ भी एक तो नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने ऐसे बोला कि मैं लेट गई थी, स्टार्ट हुआ था पहले से, बच्चे कम आए थे बारिश की वजह से, तो जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म हो रही थी। जब मेडिकल में मैं गई तो सिर्फ वहाँ पे 2 ही जन थे, बाकी लोग नहीं थे, मैं और मेरी एक और फ्रेंड थी। सो हम लोग ने, मैंने दिया उनको, और मैं जब उनके देने गई मेडिकल्स तो मैं सब अकेली थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इसके पहले क्यों नहीं हुआ था जब मैं मेडिकल तक पहुंची थी, क्योंकि वो सेम ही थी। तो मैंने उनको बोला कि मैम कम्युनिकेशन राउंड में जो लास्ट था उसमें मैं निकाल दी गई थी। तो शी वाज ओके। फिर उन्होंने बाकी सारी चीज़ें मेरी चेक करी जैसे नॉर्मली करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने मेरा हाथ फिर से नोटिस करा। फिर उन्होंने बोला कि वाई डिडंट यू कंसील योर हैंड? तो आई वाज लाइक वाह, मतलब आई वाज लाइक, मैं थोड़ा घबराई। फिर मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रही हैं। तो मैंने बोला कि मैम कैन आई कैन गो एंड कंसील इट? सो शी सेड अभी सर आके देखेंगे। देन लाइक मैम गिव मी जस्ट 2 minutes, आई जस्ट गो बैक एंड जस्ट कंसील इट। शी लाइक ओके। सो मैं चली गई और उन्होंने मेरे फॉर्म पे जो भी लिखा हो। फिर आई केम बैक अगेन for the 3rd round result in the same hall. So sir asked me that why you came here. So I said, sir, I'm waiting for my third round result. So she said, what's your name? So I told him about my name, like my name is Shehzadi. He said, okay Shehzadi, go for the 4th round. उन्होंने मेरा पेपर जो भी मैंने बोल दिया होगा उनको, जो भी वो, मतलब उन्होंने बाकी मुझसे नहीं बोला कुछ भी, उन्होंने बोला कि go for the 4th round. Again I was happy and फिर आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न। फिर वो 1 by 1 हो रहा था। एक बंदी जाके लैपटॉप पे सामने बैठ रही थी, फिर दूसरी जा रही थी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते करते हमारा नंबर आया। मैं गई उनके सामने और मेरे साथ 4th राउंड में क्या हुआ, मेरे साथ सेम चीज़ हुई। लाइक
So in the fourth round, what happened with me? He asked me the same question. Like he asked me, "Are you from where?" So I told him that I am from Unnao. He said, "Okay. So what is famous in Unnao?" So I explained him everything about Unnao. Then he asked me that what brings you Lucknow. So I explained him everything. फिर थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, थोड़ा आवाज कट फंस रही थी. Suddenly ma'am came and like he said to him that please WhatsApp me the names and all. So I don't know, उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू शहजादी, एंड फिर मैं उठ के चली गई. बट मेरे अकॉर्डिंग आई एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग, लाइक मतलब मैंने उन्हें बहुत अच्छे से जवाब दिया. पर मेरे साथ एक चीज बहुत कॉमन हुई कि मेरे जो लास्ट वीडियो कॉल राउंड हुआ था उसमें भी वैसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कहाँ से हो और आप लखनऊ के बारे में क्या जानती हो या लखनऊ से रिलेटेड. और मैंने इस बार उन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया अच्छे से, सब कुछ सब अच्छा हुआ. फिर मैं गई अपने फोर्थ राउंड का रिजल्ट वेट कर. दैट वाज द लास्ट राउंड. आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट. आई वॉज लाइक नर्वस एंड ऑब्वियसली एक होता है ना कि आप एक बार रिजेक्ट हो जाते हो उस जगह पे जाके, तो आपको लगता है कि पता नहीं इस बार भी क्या होगा. बट मेरे को लगता हो जाएगा इंशाल्लाह. दुआ कर रही थी. मैंने किसी को कॉल नहीं करा कि मैंने थर्ड राउंड क्लियर कर लिया है या मैं फोर्थ के लिए वेट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं. मेरे को लगा था कि आज तो मैं मतलब सुना के ही जाऊंगी खुशी अपनी मतलब घर वालों को कि दैट आई गॉट सेलेक्टेड. बट unfortunately ma'am came into that waiting hall and she took my name first as like before. जब मैं पहले रिजेक्ट हुई तब भी उन्होंने मेरा ही नाम पहले लिया था. तो जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया ना, आई वाज लाइक हो गई नहीं आ पार. मैं समझ गई कि मेरा नहीं हुआ है. पता नहीं मुझे फीलिंग. फिर मेरे साथ उन्होंने कम से कम 8 लड़कियों का नाम लिया और उन सबको उन्होंने बोला कि कम विद मी. फिर हम लोग बाहर गए उस हॉल से. फिर उन्होंने वहां जाके बोला गाइज यू आर नॉट सेलेक्टेड, गो फॉर लाइक गो बैक टू होम एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, ऐसे करके. एंड ऑब्वियसली मैं फिर से दुखी हो गई कि मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब मुझे लगता है कि जितने भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मेरे साथ लास्ट राउंड तक गए हैं वो डिजर्विंग नहीं थे, ऑब्वियसली डिजर्विंग थे. पर मुझे लगता है कि वो सब डिजर्विंग है तो हम क्यों नहीं है, मतलब हम में कहाँ पे कमी आ रही है. तो मैं इस बार वाकई में मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी इस बार तो हो जाए. तो फिर मैं हो गया मेरा. फिर वो मैं अंदर आई वापस से सैड सा फेस लेके. फिर मेरी फ्रेंड ने पूछा व्हाट हैपेंड. मैंने उसको बताया. शी सेड ओके शहजादी नो इशू ये वो. फिर मैं बाहर हम जाने लगे चेंज करने के लिए कि अब तो भाई क्या है घर जाना है. सो व्हाट आई थॉट दैट शुड आई टॉक टू लाइक ऋषभ सर. सो मैंने सोचा कि मैं एक बार उनसे पूछती हूँ कि सर कहाँ पे लैक करी हूँ, तो एटलीस्ट जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मैं उस चीज़ पे काम करके आऊंगी. सो आई वेंट टू द हॉल. उस टाइम पे सारे इंटरव्यूज खत्म हो चुके थे और 1 बजे के आसपास सब कुछ वाइंड अप हो गया था एकदम. बस जो लड़कियां वेटिंग लाइक जो बैठी थी जिनके नाम ले लिए थे कि आप जाओ घर, उसके अलावा जो लड़कियां बैठी थी वो सिलेक्टेड थी. फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू करते पीएचडी का या फाइनल में जिनका था उनका नेम वेम लिखते. तो 2 HR जा चुके थे, सिर्फ 2 HR वहां पर थे. तो उन्होंने मेरे को बुलाया. उन्होंने नहीं बुलाया, मैं खुद गई उस हॉल में. और मैं ऋषभ सर वॉज लाइक. So I went to Rishabh sir and I asked him, sir, can I talk to you? So he said, yes, Shahzadi, ask. So मैंने उनको बोला, sir, where I'm lacking? Like all the time I got rejected in my last round and I got emotional. मतलब like मेरा आँख में आंसू आ गए थे उस टाइम पे. He's like, calm down, take water and like that. He was very nice. मतलब मैं उनसे जब मैंने पहली बार मिली तो मुझे लगा कि रिजेक्ट हो गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं ऐसे करके सोचा था मैंने. बट जनरली मुझे कल उनसे उन्होंने मुझे एटलीस्ट अपने 15 to 20 मिनट्स दिए कि टॉक टू मी वेरी नाइसली. लाइक उन्होंने मुझे अच्छी से अच्छी चीज़ें बताई. उन्होंने मुझे अभी तो इंटरव्यूज आए भी नहीं है. उन्होंने मुझे बोला शहजादी डोंट वरी, कम इन अक्टूबर. अभी एक वैकेंसीज दिखा नहीं रहा पर ऑब्वियसली होंगी, तभी उन्होंने बोला मुझे. एंड जस्ट गो बैक टू योर होम एंड practice every day in front of mirror that where you are lacking. Okay, the questions I asked you today, the questions the other HR asked you today, prepare all the answers and then come to the next interview. This next time you will not be dissatisfied with the result. I was like okay, I was happy and I was like okay. So obviously मैं जितनी भी मैं दुखी थी ना, मतलब उन्होंने जितना अच्छे से मोटिवेट किया ना बोल के, भले मेरा नेक्स्ट में हो नहीं हो वो नहीं पता, पर जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया, इतने प्यार से उन्होंने एक्सप्लेन करा, अपना टाइम दिया, मतलब मुझे इतना लगा कि यार कितने सही है. मतलब इतना अच्छे से उन्होंने मुझे हर एक पॉइंट बताया ना, मतलब नहीं डोंट वरी. फिर इतने अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए कि हमारे जो मतलब उन्होंने बोला कि जो हमारे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं और वो कुछ ना कुछ उनको दिखता होगा कमी ज़्यादा, इसलिए वो मतलब वो इतने अच्छे से बता रहे थे मुझे. तो मेरे को लगा कि ओके सर. मेरे को लगा ठीक है. फिर मैं आ गई वापस से घर, लाइक चेंज करके वो घर. सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी मुझे, जिन्होंने मेरा सेकेंड राउंड लिया था, शी वॉज अ फीमेल HR
वो इतनी ज़्यादा प्रिटी थी, मतलब मैंने शायद ही इतनी खूबसूरत लड़की कहीं देखी होगी। उनका ड्रेसिंग सेंस, आई थिंक वो मुस्लिम थी, मुझे नहीं पता कि वो मुस्लिम थी या नहीं थी, बट उनका ड्रेसिंग सेंस, द वे शी टॉक्स, इतनी ज़्यादा गोरी, मतलब चमक रही थी हॉल में एकदम। वो मेरे को लगा यार ये कितनी प्यारी है ना, इनके आगे तो मतलब हम लोगों को तो ये मतलब कुछ समझेंगे ही नहीं ना, मतलब कि यार ये तो खुद ही इतनी प्रिटी है ना। फिर वो होके फिर वो मेरा हुआ, फिर मैं आई वापस से, मैंने चेंज किया लाइक कपड़ा, और उसके बाद मैं थोड़ी सी दुखी थी, इमोशनल थी। आई कॉल्ड माई लाइक पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एंड उसके बाद मैंने बताया ऐसे ऐसे। सब लोगों ने बोला कोई बात नहीं, घर आ जाओ, नो इश्यूज, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। सो बस ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। गाइज मेरे 2 पेंडिंग वीडियोस पड़े हैं जो मुझे बनाने हैं और फिर मुझे अपलोड करने हैं, वो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही हैं। वो डिफरेंट एयरलाइंस, एंड एक है जो सेम एयरलाइंस में है, इंडिगो में ही। सो वो बहुत जल्दी आने वाला है, वो उसके लिए भी वेट करिए। और ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई लाइक यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन कमेंट देयर। So thank you guys, lots of love and best of luck to everyone. Be prepared, be confident, and speak too much when you go for the interview, because they are checking your communication skills. So this is a tip, that speak too much, don't speak less. Speak at least like 1 minute about the particular question, so he'll be like impressed by your like performance. And एक और चीज है guys, रट्टा मार के मत जाओ। मेरे फर्स्ट राउंड में एक लड़की थी, उसने ना इतना अच्छा मतलब बोला, मेरे को लगा ये कहाँ से शब्द लाई है, मतलब इतना सही, मतलब इतने इतने कठिन शब्द। जैसे मैं तो बहुत नेचुरल बोलती हूँ, मैं रट के नहीं बोलती हूँ, बहुत सभी लोग ऑलमोस्ट नेचुरली बोलते हैं, पर वो बंदी पता नहीं वो कहाँ से लाई थी रट के या कैसे। उसने इतना मतलब, वो एक अकेली लड़की थी पूरे उस बच्चों में, मतलब हम 10 में, जिसे सर ने सिर्फ अबाउट योर सेल्फ के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि उसने, और वो सेलेक्ट भी नहीं हुई, क्योंकि उसने इतना रटा हुआ बोला था, मतलब इतना रटा हुआ, इतना बंदी अटकी नहीं, मतलब लगा था महीनों से रट रही थी बैठ के। तो रट के मत जाओ, नेचुरल आंसर वो समझ जाते हैं, क्योंकि उसने इतना अच्छा, मुझे लगा यार वो मतलब पर्सनैलिटी वैसे इतनी सही नहीं लग रही थी, और मुझे जब उसने आंसर दिया मैंने कहा यार क्या सही इंग्लिश बोल रही है। बट देन आई रियलाइज कि ये रट के बोल रही है, मतलब उस शक्ल से दिखता है कि आप कैसे जवाब दे रहे हो, एकदम मतलब फ्लुएंट्स बोलते चले गए, रुके नहीं, एकदम नो पॉजेज नथिंग, बस she got rejected. So guys ये नहीं करना है, नेचुरल आंसर देना है, एकदम थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, और बाकी अपना जो मन में है दे के आइए। मेरा नहीं हुआ है अभी, पर एक दिन हो जाएगा और आप सबका भी हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आने वाला है। एक एयर इंडिया का एक्सपीरियंस वीडियो और एक इंडिगो का एक्सपीरियंस वीडियो। जो इंडिगो एक्सपीरियंस वीडियो वो तो बहुत अच्छा है। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye, lots of love, good night, take care, and one more thing, happy Engineers Day.